अस्सलामु अलैकुम। मैं मुंतहा शाह, आपकी मेजबान, एक बेहद लंबे वक्फे के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ द शेयर पेन ऑफिशियल पॉडकास्ट की एक अहम किस्त में। आज का पॉडकास्ट के आगाज से पहले मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम नाजरीन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My heartfelt gratitude to each one of you watching us and sharing your endless love and support. Sipas Guzaram. Moving forward, I want all of you watching this video to go back and imagine as if you are your 6 to 7 year old self. Now, try to remember what your biggest fear was back then. That one fear that made your heart beat so fast you could feel it about to burst out of your chest. That one fear that made your body tremble uncontrollably to the point where you can't take it anymore. That one fear that you are so scared of that you would lock yourself in a room and hope you would never have to come out. It may be fear of death, or it may be fear of kidnappers that will come into your room in the middle of the night and take you away. It may be anything, maybe violence, bruises, and all sorts of physical abuse, or possibly sexual abuse. Yes, ladies and gentlemen, today we are going to talk about child abuse. And I have with me a very special guest. She is very well known as the pride of Badgam, a social activist, as well as an engineering student. She is the founder of Not Afraid, an organization which is based on working on child sex abuse. She and her team goes school to school for the awareness campaign, not only in Badgam, but as well as other districts. They raise awareness by distributing booklets and obviously got really great response from children and well as their schools. Please welcome Nadia Mir. Thank you so much for inviting me today. It's an honor for me. So let's Actually, start. it's an honor for having you aboard. Thank you so much. Thank you so much. So, ma'am, what are the different types of child abuses? There are so many abuses, but we only know that physical abuse and the sexual abuse. But there is another abuse, that is emotional abuse, right? Emotional abuse, Yes. verbal abuse. There is another term, that is neglecting. When we are neglecting our children's from the society, from our homes as well. So there are so many abuses, but mostly what in today's era, in today's contemporary world, there are only and only we're focusing about the physical abuse and sexual abuse. So, what are some possible indicators of child abuse or, as you said, neglect? Okay. So when we talk about child abuse or when we talk about the neglecting, first we will when there are so many kids, or there are so many I can say adolescent age group, on the age of 12, 13, or 14 or 15. I consider till 18 there are there are kids as well, They're all because kids. they exactly. So when we talk about the child abuse, first we start in our homes, we just start comparing our children with another one. That is the first thing we do, right? And then we start telling our kids, look at her, she's doing so well in the studies, look at him, he's doing so well in the job, or anything else we can talk. So when we start comparing our children, when we start comparing our kids with another one, then they start an emotional abuse, right? A kid start thinking about, we are not doing so good, we are doing, if they are doing so much, but they feel every time they are just doing nothing, because their parents are not appreciating them, right? So Yes, ma'am. there is a
there is a huge gap between parents and the children, because they are not talking freely with them, they are not understanding them, they are not giving the response what they need at the age of 6, 7, 8 or 9, 10, whatever we can say. Because when the kid starts growing up, they need the concern, they need the care, affection, love from the parents. But what parents did, they start doing separation on the basis of sending the schools, what can I call them, crunch, like on the very little age they are sending them the crunch, and then they are separating their children from the very beginning. Then they start complaining about them, because they are, when you are not giving your time with the children, how can you expect that children itself give back it to you? So there is a gap, there is a huge gap which we are creating between the children and as well as the parents. So first abuse is that is emotional abuse, because you are not getting in touch emotionally with the Touch with children. your own. So, ma'am, what if खुदा ना खास्ता you receive information in confidence that causes you to suspect child abuse? आपके इसके बाद आपके क्या इक़दामात रहेंगे? What if you receive an information that causes you to suspect child abuse, that फलान जगह पे child abuse हो रहा है, तो फलान उसके जगह बाद के पे इक़दामात child क्या abuse होंगे? फलान जगह पे चाइल्ड अब्यूज हो रहा नहीं है, फलान जगह पे चाइल्ड अब्यूज हो चुका भी है और इवन हो भी रहा है. एंड आई गॉट सो मेनी केसेस 2000 फ्रॉम 2019 से, जब से मैंने ये स्टार्ट किया, सो मेनी केसेस आर देयर. जब भी कॉल्स आती है, मैम दिस इज हैपनिंग हियर, then I have to go there. फिर वहां पे वो मंजर देखना मेरे लिए, मैंने ऐसी बात, जब राइजिंग कश्मीर से जब मेरा कॉल आया था एक बार, उनको भी कुछ केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी थी, तो ऐसी जब मैंने आई वाज अभी भी मुझे वो दर्दनाक केस याद आ रहा है. शी वाज अबाउट 3 years old, मतलब 3 साल की. उसकी माँ ने जो सॉरी मुझे वो बोलते हुए भी मैं आई कैन नॉट, वो मुझे स्टिल याद आ रहा है. तो वो 3 साल की बच्ची थी, माँ ने उसको घर पे रखा था, ठीक है, अपने उसके जो देवर का बेटा, यानी कजिन ब्रदर था, उसका बड़ा था, उसको वो 19-20 years का होगा, ठीक है, 19-20. तो उसने घर पे रखा था उसको, एंड खुद वो खेत में चली गई थी. अक्सर हम यही करते हैं ना, बच्चों को किसी और के हवाले कर देते हैं. तो फिर जो वापस आई थी, तो उसने क्या देखा था, उसके जो जो उसकी बेबी थी, उसका ब्लड लॉस हो गया था, ठीक है. दिस इज वेरी हार्ट wrenching, So and very unfortunate. एग्जैक्टली. तो उसके बाद उस माँ का नंबर मेरे पास कैसे आया? मैं जब एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूंगी, मैं एक सूरत शहर गई थी, गई थी मैं एक वहां पे मैं खाली स्कूल टू स्कूल ये नहीं करती हूँ, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी पता होंगे आपको, तो मैं जाती रहती हूँ, ठीक है. तो मेरा बुकलेट हमेशा मेरे साथ होता है. आई यूज टू गिव एवरीबडी, इस पे नंबर है, कुछ भी होगा आप कॉल कर ले. तो उसके बाद मुझे कॉल आया था कि फलान जगह पे ऐसा हुआ था, तो मुझे जाना पड़ा था उस टाइम पे. तो जब मैं गई थी, तो देयर वाज ओनली ब्लड, ठीक है, और वो बेबी थी, और वो माँ सहम गई थी. माँ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसको उठा के फिर डॉक्टर के पास ले जाता है, ठीक है. तो उसके बाद उसका जो कजिन ब्रदर है, वो तो ही इज स्टिल इन जेल. बट वहां पे क्या पता चलता है आपको, जब आप बच्चे को, या चाहे बच्ची बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, आप किसी और के हवाले जब करते हैं, खुद अगर छोड़कर कहीं और जाते हैं, तो सबसे पहली गलती आपकी वही होती है. क्योंकि जब आजकल ऐसे भी केसेस है जो फादर डॉटर वाला आ गया, सिस्टर ब्रदर वाला भी आ गया, अंकल का भी आ गया. तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कजिन ब्रदर आपके साथ मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है.
सो सबसे पहले अगर कहते हैं ना, इस्लामिक नॉलेज हमारे पास बहुत कम है जी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते तो शायद तो ये फिर अलाउ ही नहीं था कि एक बाप और बेटी अकेले कमरे में हो। तो अगर हमने वो फॉलो किया होता तो ये तो कभी हमारे जहन से तो क्या, हमारे दूर दूर तक हम सुनने को नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पे हम अगर रिलीजन को फॉलो करेंगे तो दैट मीन्स हम दूसरे अगर कोई हमारे मजहब से नहीं है तो हम उसको भी तो हमें ये बात समझानी है। चाइल्ड अब्यूज इज जी नॉट बिल्कुल। ओनली अबाउट या आपके इस्लाम में है या आपके रिलीजन में है। ये अगर हम आउट ऑफ बॉक्स जाके बात करेंगे, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, मैं यहाँ पे भी एक चाइल्ड अब्यूज का कैंपेन स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे तो मुझे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो सिख्स है, यहाँ पे तो हिंदूज भी है। उनको उनको तो मैं ये बात नहीं समझा पाऊंगी ना कि आप हमारे मजहब में ऐसा है, हमारे मजहब में वैसा। उनको उसके अकॉर्डिंगली हमें समझाना होगा। सो अब और हम क्या करते हैं, हम आजकल मजहब को ज्यादा टारगेट करते हैं। व्हेन आई स्टार्ट जी द बिल्कुल। कैंपेन, फिर मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी किया था इंस्टाग्राम पे, तो आप देख सकते हो वो भी। तो किसी के क्वेश्चन आया था कि बच्चों के कपड़े ही खराब होते हैं, दैट्स व्हाई उनके साथ अब्यूज होता है। ठीक है, ये ऐसी जी सोच है हमारे हमारे कुछ ऐसे मरहब माशरे हजरात। की। जी जी जी। तो ऐसे आया था कि मैंने बोला चलो बड़ों का तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, आई कैन नॉट जज, लेकिन जब छोटे बच्चों की बात आती है तो आप कपड़ों पे जज नहीं कर सकते उनको। फिर तो हमें राजौरी वाली आसफा का भी देखना होगा कि उसके तो क्या ही जी कपड़े होंगे जो 6-7 लड़कों ने उसके साथ रेप अटेम्प्ट किया, राइट। तो जी पहले तो सोच ही हमारी इतनी इतनी सी हो गई है कि हमें पता नहीं हम क्या बात करते हैं कभी कभी। और कभी जी कभी ये भी हो जाता है कि, और ये अब्यूजर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अब्यूजर कभी बाहर से नहीं आता, ये हमारे घरों में ही होता है। ये मैं हमारे घरों में से ही नाइन होते हैं। हाँ, जी 99% केसेस जितने मैंने हैंडल किए हैं, एवरी केस वो जो भी हुआ है उनके घरों में ही हुआ है। या तो फादर का केस होगा, या तो अंकल का होगा, या तो कजिन ब्रदर का होगा। कभी किसी आउटसाइडर का केस नहीं होता है। बनता ही नहीं है। जी हम्म, सो मैम आजकल जैसे आपने कहा कि आपने अभी अपने कुछ केसेस के बारे में आपने बात करी। हम्म, तो मैम हम्म, ज्यादातर देखने को ये मिलता है कि पीपल डोंट एक्चुअली हम्म, रिपोर्ट चाइल्ड अब्यूज। ऐसे बहुत एग्जैक्टली। से लोग हैं जो चाइल्ड अब्यूज को अपने तक महदूद रखते हैं, बाहर आके हम्म, खुल के आके वो हम्म, बात नहीं करते उस बारे में। हम्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, मैं एक केस के बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो रिसेंटली हुआ था, फादर और डॉटर वाला केस आया था श्रीनगर साइड से। तो वो मेरे पास ही पहले वो केस आया था, एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जब मैंने उस केस का एंड तक, अभी भी वो चल रहा है, उसका बाप स्टिल ही इज इन जेल, ठीक है, सेंट्रल जेल में है वो अभी। तो ऐसा क्यों होता है, एक मास्टर में जब आप रहते हैं, एक सोसाइटी में जब आप रहते हैं, देयर आर टू पीपल, गुड पीपल, बैड पीपल, राइट। तो ज्यादातर इम्पैक्ट किसका पड़ता है, जब बुरे लोग आपके बारे में ज्यादा बात करते हैं। वो जो बच्ची है उसमें इतनी हिम्मत है कि उसने बोला घर पे आके कि मतलब अपने नानिहाल वालों को, या मुझे बोला, स्पेशली मुझे बोला कि दिस इज हैपनिंग विद मी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा उसने बोला। लेकिन जब वही माशरा, वही सोसाइटी आपको ये जाके बोलती है कि बेटी झूठ बोल रही है, फर्स्ट थिंग, बेटी झूठ बोल रही है, सेकेंड थिंग, उसके बाद फिर होता है कि इसका कुछ अपना ही होगा, इसने बाप पे इल्जाम लगाया, राइट। दूसरा, जी तीसरा, जब उसकी माँ ही बोलती है कि आपने नहीं बोलना था किसी और को, हमें घर नहीं सुलझा लेते, हमारी इज्जत खराब होगी, ठीक है। जी सब। जी जी और चौथा, हम जो बोलते हैं कि तब हमारी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि इसने तो अपनी बदनामी खुद कर दी। तो ये 4-5 चीजें जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। सी क्या होता है ना, बांडीपुरा में एक केस आया था जहां पे एक 10 साल की बच्ची, शी वाज प्रेग्नेंट बाय हैविंग 8 मंथ्स, ठीक है। तो उसकी माँ को तब तक पता नहीं चला, जब तक उसके 8 महीने आ गए थे। फिर डॉक्टर ने उनको ये बोला उस टाइम पे। वो भी केस हमारे पास आया था, रिकॉर्ड में हमें रखना पड़ता है, वो चीजें रिकॉर्ड में रखनी पड़ती है। तो उसमें क्या हुआ कि जब उस डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है, आपको अभी तक पता नहीं चला, तो उसके अंकल का ही बेटा था, ठीक है, मतलब बच्चा था, उसका चाचा उसके साथ ऐसे कर रहा था, ठीक है। और ये बच्चे इतने मासूम होते हैं, दे आर सो मतलब इमेच्योर भी कहो। और 8 साल का बच्चा क्या ही होगा, राइट। 8 साल का बच्चा, बेबी कितनी ही होती है मेरे हिसाब में, तो मैं 18 साल के बच्चे को भी बेबी ही बोलती हूँ। तो वो जी जी कितने होंगे, बिल्कुल। और उनको क्या पता होगा गुड टच बैड टच, नॉलेज बिल्कुल कम है, माँ बिल्कुल इलिटरेट है, गुड टच बैड टच पता नहीं है, स्कूल्स काफी टाइम से बंद है।
वो गवर्नमेंट स्कूल के जी। बच्चे हैं, तो वहाँ पे तो गुड टच बैड टच का बिल्कुल ही कंसेप्ट नहीं है, वहाँ तो और मुश्किल से स्कूल इंग्लिश में तो उर्दू ही ये पढ़ा ले। एजुकेशन देते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां तो इंग्लिश उर्दू ही पढ़ा ले तो काफी है, ठीक है ना। तो जी। जब इलिटरेट है, जब गुड टच बैड टच का कोई कंसेप्ट नहीं है, माँ को 8 महीने तक उसको पता नहीं चला मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद जब वो कॉन्सिक्वेंस बाहर आ जाता है, तो तब मतलब वो बर्स्ट आउट हो जाता है, राइट। तो पूरे एरिया में पता चल जाता है कि ऐसा हुआ। उससे बेटर नहीं है कि पहली अगर बेटी बोलती कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तब स्टेप लेना, जो उस लड़की ने किया, जो श्रीनगर की लड़की थी, जो उसने अपने बाप के खिलाफ एक्शन लिया। नो मैटर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे थे, मोहल्ले में क्या बोला, एरिया में क्या बोला, या डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपने रिलेटिव्स ने क्या बोला, तो वो चीजें जब होती है ना, उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको सोसाइटी जीने नहीं देती, और ये फैक्ट है। जितना आप बोलेंगे ना कि हम स्ट्रांग है, वी आर सो स्ट्रांग, वी कैन हैंडल इट, स्ट्रांग जस्ट हम बोलते हैं कि हम स्ट्रांग है, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन जिस पे बीती है वही जानता है। और जो कॉन्सिक्वेंस उसके जी होते हैं, तभी जाके वो रिपोर्टेड केसेस नहीं होते, तभी जाके वो रिपोर्ट नहीं होता है। लेकिन अब आजकल के बच्चों में आई कैन से अवेयरनेस जितना आप करोगे, बच्चों में अकल आ जा जाती रही है। है। जी। बिल्कुल, इसके लिए सबसे ज्यादा अवेयरनेस करना है, ताकि बच्चों को समझ आए। क्योंकि माएँ जो होती है ना, वो हमेशा सेंसिटिव रहती है। माएँ कुछ भी सुन के बेटी के बारे में, या आपको भी पता होगा, माएँ जी कहती है चुप करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जी जी। किसी को जी। पता नहीं चलना चाहिए, इज्जत खराब हो जाती है। तो माएँ ऐसी होती है, दैट्स व्हाई ये रिपोर्ट नहीं होता है ज्यादा। And what would how do I know whether I have a reasonable cause to suspect that a child is a victim of abuse? जैसे कि किसी बच्चे ने या किसी घराने ने आपको आके रिपोर्ट किया कि फलां बच्चे के साथ ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, तो क्या मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? उसकी, हाँ, सबसे पहले जब आप उस बच्चे से मिलोगे, आप वो बच्चा आपको कभी अपनी सच्चाई नहीं बताएगा जब तक आप उसके साथ फ्रेंडली नहीं रहोगे। जी ऐसी एक जब भी हम इसमें हमने जितना रिसर्च किया है, जब भी मैंने बच्चियों से बात की है, तो एवरी टाइम जब मैं उनके पास जाती हूँ, दे नेवर सेड एनीथिंग, कभी भी नहीं वो बोलेंगे कि हाँ 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 हमारे साथ ऐसा हुआ, कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो मैं क्या, मेरा जो तरीका है, मैं बच्ची को साइड में ले जाके एक रूम में बिठा के उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली वाला, मतलब ताकि वो मुझ पर ट्रस्ट करे। पहले तो आपको ट्रस्ट गेन करना है ना, ताकि वो आपको गेन अपनी बात करना। बताए, और किस जब तक हुआ है जी वो भी बताए। क्योंकि कभी कभी बच्चा बोलता है बस इतना ही हुआ है, वो आगे नहीं बोलना चाहता है। तो जब तक आप वो ट्रस्ट वो वाला ना वो गेन करना स्टार्ट करोगे अपोजिट वाले बच्चे से, उसके साथ वो वैसा वाला बिहेवियर आपको रखना, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि बच्चा आपको तभी कुछ बोलेगा जब आपका बिहेवियर सही होगा, और जब आपको उसको लगेगा कि आप ट्रस्ट वर्दी हो। देन यू हैव टू उसका ना वो डेप्थ तक जाने के लिए उसको यहीं से बोलना है, बेटा ऐसा तो नहीं हुआ है, फिजिकली टच तो नहीं हुआ है, किस हद तक हुआ है, वर्बली क्या बोला गया है, मैं आपके पेरेंट्स से नहीं कहूंगी, मैं किसी और से नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगी, मतलब दिस काइंड ऑफ वो गुड जेस्चर वाला, वो एक प्यार भरी, मतलब वो ना सपोर्टिव वे में, वो नहीं कि आपने ऐसा किया अब जी आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आप उस बच्चे को जब कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हो, आप उसको आपका फ्यूचर भी दिखा देते हो कि फिर आपके साथ ये होगा अगर नहीं बोला, अपना डराने वाले वे में आप कभी बच्चे को वो उसका ट्रस्ट गेन नहीं कर सकते। हाँ, ये कह के कि जब आप कहोगे बच्चे को कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, तो आपको कुछ कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, जितना हो सके मुझे आप बता दो, किसी और से शेयर करने की जरूरत नहीं है, आई एम योर फ्रेंड यार, व्हाट एल्स, ऐसे वाले वे में। जी। Child abuse is a problem that spreads around the globe and it has to be stopped. There are different ways to do that. And the first step you can take it is to become a good parent if you have a child. If you know that your child is upset about something, try your best to support him or her. If your child feels upset or lonely, try to comfort them instead of telling them stop feeling that way. The truth is that there will be sad and happy moments for your child, and you have to support them no matter what, even if you don't want them to feel a certain way. If you are not a parent, you can still prevent child abuse in multiple ways. Let me share with some. Raise awareness about child abuse. Educate your community about what child abuse is and how many kids are in danger, even though many may not realize it.
Contact journalists, writers, and non-profit organizations that could help bring attention to the issues of child abuse and neglect. You may also post information on websites, forums, social media, or publish stories in online journals, magazines, or papers. If you know someone who has suffered from child abuse, try to help them. You can donate some goods like food, clothes, support them through hard times. Give them numbers of helplines of non-profit organizations that are trying to prevent any sort of abuse. Find professional psychological help for them. Report whenever you see any kind of abuse happening. Most importantly, I repeat, most importantly, don't try to solve the problems on your own. Intervening might lead to even bigger danger. If you become a witness of such a situation, document everything you see, as well as time, date, location, abuser's appearance, and other information that, that would help police so that they would ask you to file a report. Organize a community or non-profit organization. It might seem like a hard thing, but only at first. Support children that have suffered from child abuse, neglect, or domestic violence. Sometimes a lack of support results in mental disorders like depression. It is important to help the victims of abuse, especially if they are children, because they are even more vulnerable to the negative effects of abuse. Of course, you should help everybody, no matter what their age is, but sometimes parents ignore the problems of their children and don't provide any support. Remind victims that everything that has happened to them is not their fault and they should not blame themselves. This is all from me. Thank you for watching. Allah Hafiz.